Bismillahirrahmanirrahim. Uh, Welcome to Psych course. We have to discuss a very important topic of class 10, chapter number 10, simple harmonic motion and waves. The topic is ripple tank. I am your instructor, Nabiur Rahman. So let's start the contents of our slide. The first one is introduction to ripple tank. So the second one is construction and working. Third is making of crust and turf, and finally we will see the processes of wave like reflection, refraction and diffraction with respect to the ripple tank. Let's talk about what is the definition of ripple tank. So basically it is a device which is used to produce water waves and used to demonstrate the different properties of water waves like reflection, refraction and diffraction. So now we'll see the construction and working of ripple tank. So the apparatus is basically consists of a rectangular glass tray having glass bottom and is placed nearly a half meter above the surface of a table. Waves can be produced on the surface of water present in the tray by means of a vibrator or pedal. As you can see, the diagram is here in which a rectangular glass tray is placed and we have a light source. Light is produced on the surface of rectangular glass tray. Here we have a electrical assembly that is connected with a power supply, and we have a motor or vibrator with pedal. So when the motor is on, the pedal is basically vibrate on the surface of water and the wave is produced. So it is basically the same principle of producing wave on any surface like water. When the wave is produced on the surface of water, the light source above the table produces a light, and the image of water waves you can see on the bottom side of the glass tray. And it is basically the wave fronts or wave patterns. Finally, the wave is have a working process. Vibrator, that is basically the oscillating motor, is on, which just touches the water surface. So the next is wave produced on the surface of water. By simply when we on the motor, the wave is produced on the surface of water. Wave fronts are formed in the terms of straight lines. In ripple tank, the wave is basically produced in a straight line form, not in a circular form. As you know that there is a two portion of wave, that is crust and trough. The crust and trough of the waves appears as a bright and dark lines respectively. The crust is basically the bright lines, and the dark lines show the trough that is on the surface of screen or the image where is images appear. Now the electric bulb hung over a ripple tank forms the shadow of the waves. Yes, and the purpose of electrical bulb is basically it falls the radiation or shine light on the surface of rectangular glass tray, and the vibrator is on. Their image is produced at the bottom of the table. So now let's talk about the difference making in ripple tank. As in your diagram you can see, we have a blue lines and the white lines. Blue lines is basically the crust. Blue lines is basically the crust, and the white line is basically the trough. As you know that the distance between two consecutive crust or the distance between two consecutive trough will make a complete wave, that is called the wavelength, and that is denoted by lambda. Dear students, the first property of wave, that is reflection. The definition is when wave moving in one medium falls on the surface of the another medium, they bounce back into the first medium such that the angle of incidence is equal to the angle of reflection. ओके स्टूडेंट्स, जो ये रिफ्लेक्शन की डेफिनेशन है, अगर आपने इसे अंडरस्टैंड करना है तो हमारे पास यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है कि दो पिक्चर्स हैं, दैट इज़ पिक्चर ए एंड पिक्चर बी. अगर हम सिर्फ पिक्चर ए की बात करें तो पिक्चर ए जो है वो बेसिकली शो कर रही है उस तरह की पिक्चर को जिसमें रिफ्लेक्शन अभी नहीं हुई. अब स्टूडेंट्स वो कह रहा है कि आपके पास जो रेड एरो लाइन आपको नज़र आ रही है, रेड एरो लाइन जो है बेसिकली शो कर रही है
है डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव को। वेव जो है जो कि लेफ्ट साइड से राइट साइड की तरफ मूव कर रही है। अब हमने वेव की डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन के अलॉन्ग जो है हमने एक बैरियर को प्लेस कर दिया, सम सॉर्ट ऑफ ओपेक सरफेस को हमने प्लेस कर दिया। अब हुआ क्या स्टूडेंट्स कि यहाँ पे जब वेव को जैसे ही ये ओपेक सरफेस मिली तो वेव जो है इससे टकराने के बाद अपने पाथ को चेंज कर लेगी। अब या अपने पाथ को चेंज कर सकती है या अपने पाथ में डेविएट हो सकती है। सो स्टूडेंट ये दोनों जो बेसिकली टर्म्स है, पाथ को चेंज कर लेना, पाथ को डेविएट कर लेना, बेसिकली ये रिफ्लेक्शन को जो है डिपिक्ट कर रही होती है। अब होगा क्या स्टूडेंट्स, अगर हमने इसकी रिफ्लेक्शन को चेक करना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपको ओपेक सरफेस नज़र आ रही है तो हमने इसके सेंटर पॉइंट में एक नॉर्मल लाइन ड्रॉ कर लेनी है। जो नॉर्मल लाइन होती है वो आपको पता है वो परपेंडिकुलर होनी चाहिए। अब स्टूडेंट जो रेड लाइन है वो शो करी डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ वेव्स को। यहाँ पे आपको एक एंगल आई नज़र आ रहा है जिसको हम एंगल ऑफ इंसिडेंट कहेंगे। अब सेकंड पिक्चर जो मैं आपके सामने इस टाइम शो करने लगा हूँ वो शो कर रही है जब वेव्स की रिफ्लेक्शन हो चुकी है। अब स्टूडेंट्स हुआ क्या कि जो रेड लाइन जो कि लेफ़्ट टू राइट मूव कर रही थी अब वो अप टू डाउन अपनी डायरेक्शन को शो कर रही है। दैट शोज़ के जो वेव्स की डायरेक्शन जो कि लेफ़्ट से राइट थी वो चेंज हो चुकी है। तो ये चेंज आई है इसके अंदर बेसिकली डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन के अंदर, ये रिफ्लेक्शन को शो कर रहा है। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे आपको आर नज़र आ रहा है, आर बेसिकली जो है वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है, यानी जो जिस एंगल के साथ वेव इंसिडेंट हुई थी, इंसिडेंट मीन फॉल होना, किसके ऊपर फॉल हुई थी, ओपेक सरफेस के ऊपर, उसी एंगल के साथ वापस वो रिफ्लेक्ट हो रही है। तो ये जो एंगल आर जो आपको नज़र आ रहा है इसको हम एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहेंगे। ओके स्टूडेंट्स, अब अगर हम दोबारा अपनी डेफिनेशन पे गौर करें कि रिफ्लेक्शन होता क्या है, रिफ्लेक्शन में होता ये कि आपको नज़र आ रहा है कि जो वाटर सरफेस के ऊपर वेव प्रोड्यूस हो रही है वो आपका मीडियम 1 है, मीडियम 2 उसमें क्या है, मीडियम 2 आपके ओपेक सरफेस है। अब वेव जो कि वाटर सरफेस से प्रोड्यूस हुई जो कि मीडियम 1 था, जब वो किसी दूसरे मीडियम के साथ कोलाइड करेंगे, स्ट्राइक करेंगी, तो वो वापस वेव जो है वो अपने ही मीडियम के अंदर बाउंस बैक हो जाएगी। तो आपको नज़र आ रहा है कि वेव ऐसा नहीं हुआ कि जो ओपेक सरफेस थी उसके वो पास करके उसके अंदर से गुजरते हुए आगे चलेगी, नहीं, बल्कि उस ओपेक सरफेस से स्ट्राइक बैक, कोलाइड बैक, बाउंस बैक होने के बाद वेव वापस ही वाटर के अंदर मर्ज हो गई। तो इस तरह के प्रोसेस को हम रिफ्लेक्शन कहेंगे। Okay, now students, let's move toward the next property, that is the refraction. अब स्टूडेंट्स रिफ्रैक्शन को स्टार्ट करने से पहले आपको जो है पता होना चाहिए कि जो आपके पास रिपल टैंक में 2 रीजन होते हैं वाटर के। अब इसमें एक रीजन शैलो रीजन है, दूसरा डीप रीजन है। यानी जो रिपल टैंक में जो आपको रेक्टेंगुलर ग्लास ट्रे नज़र आ रही होती है उसके अंदर जो वाटर प्लेस होता है वो बिल्कुल स्ट्रेट नहीं होता है। ऐसा नहीं होता कि उसमें पूरे जो रेक्टेंगुलर ग्लास ट्रे उसके अंदर जो डेंसिटी है वाटर की वो सेम रहे या उसकी जो डेप्थ है वो सेम रहे, बल्कि बिल्कुल स्विमिंग पूल की तरह होता है। इट इज़ जस्ट लाइक स्विमिंग पूल। कि स्विमिंग पूल में स्टार्ट में आपको कम गहराई मिलती है, जैसे जैसे आप मूव करते आगे तो वो जो उसकी डेप्थ है वो इंक्रीज़ होती जाती है। तो रिपल टैंक बिल्कुल इसी तरह होता है। अब स्टूडेंट्स आपने इसमें याद रखना है कि जो रिपल टैंक में जो वाटर सरफेस के ऊपर वेव जो प्रोड्यूस हो रही है उनकी जो स्पीड होती है वो फिक्स नहीं होती। क्यों नहीं फिक्स होती? क्योंकि वो डिपेंड कर रही थी रीजन के ऊपर, डिपेंड कर रही थी डेंसिटी के ऊपर, डिपेंड कर रही थी डेप्थ के ऊपर। अब यहाँ पे इसी कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए मैंने आपके सामने एक पिक्चर रखी है। जो आपको ब्लैक स्ट्रिप या ब्लैक लाइन नज़र आ रही है वो बेसिकली क्या है, रिपल टैंक में ये वो जगह है जहाँ पे पैडल प्लेस है और जिसके अप एंड डाउन करने से वाइब्रेशन प्रोड्यूस होगी और सिंपल हार्मोनिक मोशन प्रोड्यूस होगी। अब होगा क्या कि जो आपको ब्लैक स्ट्रिप या ब्लैक लाइन नज़र आ रही है वहाँ पे पैडल प्लेस है और पैडल उस रीजन पे प्लेस है जहाँ पे डीप वाटर है। डीप वाटर मींस कि यहाँ पे वाटर की डेंसिटी ज़्यादा है। डीप वाटर मींस यहाँ पे वाटर की डेप्थ जो है वो ज़्यादा है, यहाँ पे गहरा पानी है। अब स्टूडेंट होगा क्या कि जैसे यहाँ पे वाइब्रेटर प्लेस होगा, क्योंकि आपको पता है ये डीप रीजन है। डीप रीजन मींस कि इसमें वाटर के मॉलिक्यूल्स, वाटर की क्वांटिटी, वाटर की डेंसिटी ज़्यादा है। अब वाटर की डेंसिटी ज़्यादा होने से क्या होगा कि यहाँ पे स्लाइटली भी अगर वाइब्रेशन होगी तो वो लार्ज इंटेंसिटी के साथ फील की जाएगी। स्लाइटली वाइब्रेशन लार्ज इंटेंसिटी के साथ फील की जाएगी। तो होगा क्या कि इसमें जो λ1 आपको नज़र आ रहा है जो कि वेव लेंथ को शो कर रहा है, इसमें जो वेव लेंथ होंगी वो ज़्यादा होंगी। ठीक है, वेव लेंथ λ1 को शो करा, वो उस वेव लेंथ के दरमियान जो डिस्टेंस है वो ज़्यादा होगा, यानी एक वेव के बाद जो दूसरी वेव का डिस्टेंस है वो ज़्यादा है, बड़ी बड़ी वेव प्रोड्यूस होंगी। ये बिल्कुल ऐसी जैसे कि जब कोई सुनामी आता है या तूफ़ान आता है तो जो समंदर की सरफेस होती है उसके ऊपर बड़ी बड़ी समुद्री लहरें बनती हैं। तो बड़ी बड़ी समुद्री लहरें क्यों बनती है? क्योंकि वो बहुत गहराई से आ रही होती है। अब इसी तरह आपको यहाँ पे V1 नज़र आ रहा है। V1 किसको डिपेक्ट कर रहा है? V1 शो कर रहा है वेलोसिटी को, यानी कि डेप्थ रीजन के अंदर जो वाटर मॉलिक्यूल्स होंगे क्योंकि वो क्लोजली डेंस हैं तो वहाँ पे जो उनकी वेलोसिटी है वो ज़्यादा होगी। वेलोसिटी क्यों ज़्यादा होगी? बिकॉज जो डेंसिटी इनकी क्लोज है तो एक अगर एक वाटर मॉलिक्यूल दूसरे को धक्का मारेगा, वाइब्रेशन हुई है, अपनी काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी जो है वो इंटरनल एनर्जी ट्रांसफर करेगा, दूसरे को फौरन वो एनर्जी कैरी कर लेगा, फौरन रिसीव कर लेगा। तो एक जो है सिलसिला ब सिलसिला जो एनर्जी जो है वो आगे ट्रांसफर होती जाएगी। तो एनर्जी का ट्रांसफर होना बेसिकली क्या है, यहाँ पे जो वेव की पार्टिकल की स्पीड है वो ज़्यादा होगी आपके पास।
तो ये जो है स्टूडेंट जो बेसिकली आपको डायग्राम में जो इसका बॉटम रीजन नज़र आ रहा था, ये डीप वाटर रीजन को शो कर रहा है। अगर जो हमने एक जो है इन दोनों रीजन के दरमियान एक लाइन सी ड्रॉ की हुई बाउंड्री लाइन है, अगर बाउंड्री लाइन के अबव अगर हम बात करें तो वहाँ पे जो वाटर का रीजन है वो शैलो वाटर रीजन है। अब शैलो वाटर रीजन मीन्स कि वाटर के मॉलिक्यूल्स जो हैं वो आपस में क्लोजली पैक इतना नहीं है जितना डीप में, वो थोड़ा सा अपार्ट फ्रॉम है, एक दूसरे से दूर दूर है। तो अब दूर दूर होने की वजह से क्या होगा कि जो इनकी इंटरनल एनर्जी है वो दूसरे को देर से ट्रांसफर होगी। देर से ट्रांसफर होगी तो क्या होगा, यहाँ पे जो वेव की वेलोसिटी है वो या जो स्पीड है वो कम होगी। अब वेव की वेलोसिटी स्पीड कम होने के बाद फिर क्या होगा, यहाँ पे जो वेवलेंथ जो कि आपको λ2 नज़र आ रहा है, यहाँ पे वेवलेंथ के दरमियान जो वेव के दरमियान जो वेवलेंथ का डिस्टेंस है वो कम होगा, यानी कि बहुत करीब हो जाएगी। सो स्टूडेंट्स, ये बेसिकली आपको जो पिक्चर मैंने दिखाई है इसमें दोनों का बेसिकली कॉन्सेप्ट ये है कि जब वेव जो कि रिपल टैंक की सर्फेस से प्रोड्यूस हो रही हैं, किसकी वजह से हो रही हैं, वाइब्रेटर की वजह से हो रही हैं। जब वाइब्रेटर अप एंड डाउन मोशन करेगा तो वेव प्रोड्यूस होंगी। ये जो वेव प्रोड्यूस हो रही हैं डीप से शैलो की तरफ, अब क्योंकि रीजन चेंज हो रहा है, डीप रीजन में डेंसिटी ज़्यादा है, शैलो रीजन में डेंसिटी कम है, तो डेंसिटी के वेरिएट होने से क्या होगा, जैसे कि मैंने पिछली अपनी स्लाइड में बात की, अगर मैं दोबारा बंद करूँ कि डेंसिटी के वापस वेरिएट होने से बेसिकली रीजन चेंज होगा, वाटर की डेप्थ चेंज होगी। वाटर की डेप्थ होने से क्या होगा कि जो वाटर के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो अपनी एनर्जी को ईजिली ट्रांसफ़र नहीं कर पाएंगे, या एक में ईजिली कर रहे हैं दूसरे में मुश्किल से कर रहे हैं। तो बेसिकली इससे क्या होगा कि वेव की स्पीड पे फ़र्क आ जाएगा, वेव की स्पीड वेलोसिटी पे फ़र्क आ जाएगा। सो बेसिकली ये जो प्रोसेस है आपका, ये किसको शो कर रहा है, रिफ्रैक्शन को। यानी यहाँ पे लिखा हुआ भी है कि बेसिकली द चेंज ऑफ द पाथ ऑफ द वाटर वेव्स व्हाइल पासिंग फ्रॉम अ रीजन ऑफ द डीप वाटर टू दैट ऑफ द शैलो वन इज कॉल्ड रिफ्रैक्शन। यानी कि रिफ्रैक्शन वो प्रोसेस है जिसमें जो वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं वो बाउंस बैक नहीं होते। अब रिफ्लेक्शन में क्या था, वाटर मॉलिक्यूल्स बाउंस बैक हो रहे थे, वेव बाउंस बैक हो रही थी, इसमें बाउंस बैक नहीं हुई। इसमें एक मीडियम में थी वेव, चली आगे, उसके बाद उसकी वेलोसिटी एकदम से कम हो गई। भाई क्यों कम हो गई, इसलिए कम हो गई क्योंकि आपने उसका रीजन चेंज कर दिया, उसकी डेप्थ कम हो गई। पहले डेप्थ ज़्यादा थी, अब डेप्थ कम हो गई, तो वेव की स्पीड एकदम डाउन हो गई। भाई क्यों हुई, बिकॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। ये जो प्रोसेस है इसको हम रिफ्रैक्शन कहते हैं। अब आपको यहाँ पे नज़र भी आ रहा है कि यहाँ पे मैंने आपके सामने एक पिक्चर शो की है जो कि रिफ्रैक्शन को शो कर रही है। बेसिकली क्या हो रहा है कि मैंने वेव फ्रॉम वन मीडियम एंटर्स इनटू द सेकंड मीडियम एट सम एंगल, इट्स डायरेक्शन ऑफ ट्रैवल चेंज। अब यहाँ पे सेकंड मीडियम ये नहीं है कि यहाँ पे जो आपके पास फर्स्ट मीडियम वाटर था, सेकंड मीडियम जो है वो आपके पास अल्कोहल आ गया, नहीं भाई। सेकंड मीडियम का मतलब क्या है कि वेव का जो जिस सर्फेस में प्रोड्यूस होती है वो वाटर ही है, लेकिन जो एक रीजन डीप है एक शैलो है। डीप का मतलब क्या है कि वहाँ पे डेंसिटी कुछ और है, शैलो का मतलब क्या है कि वहाँ पे डेंसिटी कुछ और है। तो डेंसिटी के वेरिएट करने से हम यही कहेंगे कि वाटर तो एक ही है, पानी एक ही है, लेकिन उसकी डेंसिटी वेरिएट करने की वजह से क्या हुआ है, एक स्लाइटली एक मीडियम का डिफरेंस क्रिएट हो गया। ये जो मीडियम का डिफरेंस क्रिएट हुआ इसकी वजह से जो रिफ्रैक्शन जो प्रोसेस हो रहा है उसको हम रिफ्रैक्शन कह रहे हैं। वंस अगेन यहाँ पे भी जो आपको ब्लैक लाइन नजर आ रही है वो वेव की डायरेक्शन थी, लेकिन वो स्लाइटली बेंड हो गई, थोड़ा सा डेविएट करके जो आपका डेविएशन हुई है बेसिकली किसको शो करिए, रिफ्रैक्शन को शो करिए। क्यों हुई भाई, बिकॉज ऑफ चेंज इन और वेरिएशन इन द डेंसिटी। वो क्यों हुई, क्योंकि आपने एक डीप रीजन लिया था और एक शैलो रीजन लिया था। अगर आप रिपल टैंक के सारा का सारा रीजन जो है वो बिल्कुल स्ट्रेट ले लेते, कोई इसमें डेंसिटी की वेरिएशन नहीं होती, तो कभी भी रिफ्रैक्शन नहीं होती। Okay, now students, we have a third process or the third properties, that is diffraction, the bending or separating of waves around the sharp edges or corners of obstacles or slits is called the diffraction. Basically अब होगा क्या, ये आपको पिक्चर में बिल्कुल आसानी से नज़र आ रहा है कि जो आपके पास अगर लेट्स सपोज हम वेव जो है वो प्रोड्यूस करते हैं उसी तरह रिपल टैंक की सरफेस के ऊपर, तो रिपल टैंक की सर्फेस के ऊपर जो वेव प्रोड्यूस हो रही हैं इनके सामने अगर हम एक ओपेक सरफेस रख देते हैं। अब ये ओपेक सरफेस आपकी जो है वो पहले जो हमने ओपेक सरफेस रखी थी वो फुल्ली क्लोज थी, यानी कि उसमें कोई गैप नहीं था, कोई कॉर्नर नहीं था, कोई जो है होल नहीं था, लेकिन अब इसमें हमने गैप या होल रख दिया। अब होगा क्योंकि वेव जो कि आपको प्रोड्यूस होती हुई नज़र आ रही है, जब जैसे ही इनको गैप मिलेगा तो इस गैप के अराउंड या उस ऑब्स्टेकल्स के अराउंड अपने आप को बेंड कर लेंगी, सेपरेट कर लेंगी। तो ये जो प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, डाइफ्रैक्शन कहेंगे। डाइफ्रैक्शन हो गई है। अभी जो आपको पिक्चर नज़र आ रही है इसमें डाइफ्रैक्शन का प्रोसेस हो रहा है, वेव बाउंस बैक नहीं हुई, ठीक है, वेव दूसरे मीडियम से टकराई, ठीक है, उसका कुछ हिस्सा बाउंस बैक हो गया, लेकिन जहाँ पे उनको होल नजर आया वहाँ से वेव ने घुसने की निकलने की कोशिश की। ये जो प्रोसेस है ये आपका डाइफ्रैक्शन कहलाएगा। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे आपको डाइफ्रैक्शन की जो है वो एक और नज़र आ रही है कि जो दो स्लिट्स जो हमने प्लेस की थी, जो हमने गैप था, गैप का डिस्टेंस हमने बढ़ा दिया। अब डाइफ्रैक्शन की क्वांटिटी या इंटेंसिटी कम हो गई। क्यों भाई कम हो गई, बिकॉज जो डाइफ्रैक्शन है वो डिपेंड करती है किस फैक्टर के ऊपर, कि देखें जो आपको ब्लू लाइन नज़र आ रही है, ब्लू लाइन क्या है, ये क्रस्ट को शो कर रही है, जो वाइट लाइन है वो ट्रफ को शो कर रही है, ठीक है। अब होगा क्या, हर वेव की एक वेवलेंथ होती है। वेवलेंथ क्या होता है, एक वेव का दूसरी वेव के साथ डिस्टेंस होता है। अब अगर जो वेवलेंथ आपकी है, वेवलेंथ अगर बहुत ज़्यादा हो जाए, ठीक है, वेवलेंथ की वैल्यू बहुत ज़्यादा हो जाए और जो आपके पास स्लिट्स के दरमियान जो डिस्टेंस है वो बहुत कम हो जाए, तो आपके पास डाइफ्रैक्शन मैक्सिमम होगी। लेकिन अगर स्लिट्स का जो डिस्टेंस है वो बहुत ज़्यादा कर दें कंपेरेटिबल टू द वेवलेंथ, यानी कि उतना आपने स्लिट का डिस्टेंस उतना कर दिया जितनी उसकी वेवलेंथ है, तो भाई डाइफ्रैक्शन तो हो जाएगी लेकिन
कम होगी। इसी तरह हम ये कह सकते हैं कि जो डायफ्रैक्शन है वो डिपेंड कर रही होती है किसके ऊपर, एक तो वेवलेंथ ऑफ वेव के ऊपर, दूसरा डिस्टेंस बिटवीन द जो स्लिट्स है, जो 2 स्लिट्स आपने प्लेस की उनके डिस्टेंस के बिटवीन प्लेस की जो उनका डिस्टेंस है उसके रिस्पेक्टिवली जो है वो आपकी डायफ्रैक्शन हो रही होती है। सो स्टूडेंट्स ये आपके पास डायफ्रैक्शन का प्रोसेस था। अब स्टूडेंट्स आपके अगर कोई भी क्वेश्चन हैं खुल के आप कमेंट बॉक्स में करेंगे क्वेश्चन, ठीक है, मैं आपकी कोशिश करूँगा कि इंशाल्लाह आपके सारे क्वेश्चंस का जो है रिप्लाई करूँ। और अगर आपको फिर भी कुछ बात समझ नहीं आए तो आप जो है वो अप्रोच कर सकते हैं मेरे यूट्यूब चैनल पे, इंस्टा पे, जैसे चाहें आप अप्रोच कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अपनी सेहत का ख्याल रखिएगा और पेपर्स की अच्छे से तैयारी कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।